Good morning, students. Very good morning. I hope that my voice is audible and the screen is properly visible to you all. Just let me know, students, मेरी आवाज आ रही so that I can start with the class. Just give me 1 more minute, students, so that I can just start the same session in my phone as well. Okay, so the very first question on your screen is students, that is now today in this particular session we are going to discuss about the questions on world geography. Okay, as we have already completed the world geography and your exam is also very near. So in this particular session we are just going to cover the questions. Okay, so the very first question is students, that is the study of the universe is known as, what is the study of the universe is called? Please answer. Sorry, students, sorry. Now, the second question is students, that is, what is in universe? Universe क्या होता है बच्चे? Universe. What is in universe? What do you understand by the term universe?
बच्चे जैसा कि आप लोग को पढ़ाया हुआ है, दैट इज द यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? यूनिवर्स रेफर्स टू द टोटलिटी, इट रेफर्स टू द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग। यूनिवर्स इज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग। कोई भी चीज आपकी जो है, हमें जो सबसे अपनी लार्जेस्ट चीज जो पता है, दैट इज द यूनिवर्स। व्हाट इज द लार्जेस्ट वन? दैट इज द यूनिवर्स, जिसके अंदर में बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया हुआ था, जैसे आपका घर होता है, राइट? आपका घर क्या है? इट इज अ टोटलिटी, जिसके अंदर में आपके कमरे हैं, आपका बाथरूम है, वॉशरूम है, किचन है, एवरीथिंग। इन द सेम वे द सेम थिंग्स गोज टू द यूनिवर्स, दैट यूनिवर्स इज अ टोटलिटी, जिसके अंदर में क्या है आपकी? इट हैज द गैलेक्सीज, it has the stars, it has the planets, it also has the Kuiper belt, right? बच्चे, Kuiper belt जो आपका है, it has the asteroids, the comets, your satellites, everything is under the or in the universe. So universe, it is a larger unit, it refers to the totality, it is the totality। बच्चे, totality का मतलब क्या है? जिसके अंदर सारी की सारी चीजें क्या हुई हैं आपकी? समाई हुई हैं। ओके, सारी की सारी चीज आपकी क्या है? समाई हुई है। दैट इज योर यूनिवर्स। Now the next we have students, that is name our galaxy. What is the name of our galaxy? Okay, हमारी जो galaxy है बच्चे, उसका नाम क्या है? और name the nearest galaxy to our galaxy. There are two questions, so you will answer one and then two. Okay, one and then two. Answer it. Very impressive, students. Very impressive. That's your. The name of our galaxy is Akash Ganga, बच्चे, or the Milky Way galaxy. Okay, the Milky Way galaxy, or you can also call it Akash Ganga, right? And the nearest galaxy to our galaxy is Andromeda. What is that? It is Andromeda. Very impressive. Very impressive. Chali, whosoever has right all these ones, that is the Milky Way galaxy and Andromeda is absolutely a correct one. Now moving to the new students, that is the what are the three important aspects of Big Bang theory? पढ़ाया हुआ है बच्चे आप लोगों को कि बिग बैंग थ्योरी जो आपकी है वो तीन क्या इंपॉर्टेंट बातों को कहती है, कि क्या आपके इंपॉर्टेंट तीन चीजें हैं, और तीनों की तीनों चीजें बतानी है आपको। ओके, पढ़ाया हुआ है। बच्चे, तीन आपको एस्पेक्ट्स पूछे गए हैं पिंकी, तीन एस्पेक्ट्स पूछे बच्चे मैंने। आपने तो तीन गैसेस के नाम बता दिए मुझे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ये तो बच्चे तीन गैसेस और जो कि तीनों के तीनों एकदम इनकरेक्ट है। Okay, Big Bomb has answered, that is the formation of galaxies, the increasing gap between the galaxy and the expansion of the universe. Okay. Anyone else?
इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट पिंकी, इट्स ऑल राइट। चलिए, सो नाउ द करेक्ट आंसर इज बच्चे, पहली बात आपकी जो बिग बैंग थ्योरी है वो ये कहते हैं दैट देयर इज अ फॉर्मेशन और द ओरिजिन ऑफ द गैलेक्सीज। फॉर्मेशन और द ओरिजिन ऑफ द गैलेक्सीज, कि आपकी गैलेक्सीज की क्या हुई है बच्चे, शुरुआत हुई है इससे। ठीक है, जब आपकी गैलेक्सीज बनी बच्चे तो धीरे धीरे करके गैलेक्सीज क्या होती गई, बड़ी होती गई। जब गैलेक्सीज बड़ी होती गई तो उनकी वजह से क्या हुआ, गैप इंक्रीज होता गया, गैप इंक्रीज बिटवीन दी गैलेक्सीज, गैलेक्सीज के बीच में क्या हुआ बच्चे, आपका गैप बढ़ा। और तीसरा क्या हुआ आपका, तीसरा हुआ इसकी वजह से दैट इट लीड्स टू द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, इट्स लीड्स टू द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, इससे आपका यूनिवर्स बढ़ा। ओके, चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स दैट इज द कमेट्स एंड द ड्वार्फ प्लैनेट इज अ पार्ट ऑफ। इज दिस क्लियर बच्चे, कि आपका जो बिग बैंग थ्योरी आप लोगों को याद होगा, इस तरीके से आपका बिग बैंग थ्योरी था। ये क्या बताती है आपका, कि आपकी एक बॉल थी वो फटी थी कितना, 13.7 या 13.8 बिलियन ईयर्स बैक, राइट। और उससे क्या हुआ आपका, उससे आपका बना बच्चे एटम। और धीरे धीरे करके जब वो एटम बनता गया तो आपका अल्टीमेटली क्या बन गई आपकी, गैलेक्सीज बनी। जब गैलेक्सीज बनी तो विद टाइम गैलेक्सीज का क्या हुआ, साइज बढ़ा। जब साइज बढ़ा तो उनके बीच का एक गैप बढ़ा, जब उनके बीच का गैप बढ़ा तो अल्टीमेटली आपका जो यूनिवर्स था, जो हमारा यूनिवर्स है, वो क्या हुआ, अल्टीमेटली एक्सपेंड हुआ, राइट। चलिए, now the next question here we have students that is the comets and the dwarf planet is a part of, exactly, ओजिंग बच्चे इसी के लिए है। comets and dwarf planet is a part of, students comets और dwarf planet किसका पार्ट है आपके, both of them। बच्चे टेल मी, आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि आपके जो प्लैनेट है दैट इज नेपच्यून विच इज द लास्ट प्लैनेट, नेपच्यून के बाद आपकी एक बेल्ट स्टार्ट हो जाती है, उस बेल्ट का नाम क्या है, उसी के पार्ट है बच्चे आपके कॉमेट्स एंड द ड्वार्फ प्लैनेट। Okay, anyone else? I think more than 50 students are watching the session, but only three have answered. What about others? बच्चे comets and the dwarf planets are a part of, absolutely correct बच्चे, that is the Kuiper belt। किसका पार्ट है ये आपके, they are the part of Kuiper belt। बच्चे आप लोगों ने Kuiper belt देखी होगी, अगर नहीं देखी तो let me show you that where is the Kuiper belt। वेरी नाइस, वेरी नाइस बच्चे, लुक एट हियर, कि आपका जैसे ही हमारा नेपच्यून खत्म होता है, नेपच्यून के जस्ट खत्म होने के बाद ही आपकी कौन सी बेल्ट स्टार्ट हो जाती है, दैट इज द क्यूपर बेल्ट। और वजह क्यूपर बेल्ट का ही पार्ट है आपके कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, ओके, ड्वार्फ प्लैनेट, ऑल ऑफ देम आर द पार्ट ऑफ द क्यूपर बेल्ट। ओके, ऑल ऑफ देम आर द पार्ट ऑफ क्यूपर बेल्ट, लुक एट हियर, कि ये आपकी क्या है बच्चे, दिस इज द क्यूपर बेल्ट। देखिए ये रहा आपका, दिस इज द पार्ट ऑफ द क्यूपर बेल्ट। यहाँ आपका नेपच्यून खत्म है आखिरी, लुक एट दिस, दिस इज द नेपच्यून, एंड आफ्टर द नेपच्यून द क्यूपर बेल्ट स्टार्ट्स। Okay. Now the next question is, students, that is, name the planets. You have to name the planets according to their distance from the sun. Sun से distance के according आपको planets के नाम बताने हैं। Means nearest कौन सा है and then to the farthest. Okay, there we have the sun. बच्चे nearest to the farthest. You can also use the short form.
ओके, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है शॉर्ट फॉर्म, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, बट इफ यू वांट टू गो फॉर द फुल फॉर्म्स, द एंटायर नेम, द फुल नेम, यू कैन ऑल्सो गो फॉर द फुल नेम्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट प्लीज आंसर अकॉर्डिंग टू दियर डिस्टेंस, ओके, फ्रॉम द सन। उबड़ खाबड़ मत लिख देना मेरे को कि पहले अर्थ लिख दिया देन बाद में लिख दिया नेपच्यून, नहीं। ओके, इन अ प्रॉपर अप्रोप्रिएट मैनर। एब्सोल्युटली बच्चे, एब्सोल्युटली। चलो, किसी ने भी फुल में नहीं लिखा, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज योर एमवेम एंड जेसन। बच्चे, क्या नाम है आपका? एमवेम एंड जेसन, व्हाट इज दैट नाउ? चलिए, जिन्हें नहीं पता, जो बच्चे ऐसे ही जो सेशन अटेंड कर रहे हैं, जिन्होंने क्लास नहीं ली है, उनको मैं बता देती हूँ बच्चे। MVEM is one and the JSON is the other. Okay. Now the MVEM stands for the Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Okay, तो बच्चे one is MVEM and the one is JSON. MVEM आपको पता है that they are the part of the inner planets and JSON they are the part of the outer planets, right? The inner planets and the outer planets ये छोटे होते हैं साइज में, ये बड़े होते हैं, ये सॉलिड होते हैं, ये गैसियस होते हैं, ये अर्थ लाइक होते हैं, ये जुपिटर लाइक होते हैं। दे आर terrestrial planets, they are the gaseous planets, they are also known as the solid planets, they are known as the Jovian planets, right बच्चे? They are between the sun and the asteroid belt, they are after the asteroid belt, right? तो ये सब आपके इन सब के कुछ ना कुछ एक एक पॉइंट्स वगैरह हैं। What is the name? That is MVEM and JSON. Very nice. चलिए, now the next question is, students, you have to answer all these ones, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 करके आप इनको आंसर करिएगा, ओके? नॉट जस्ट रैंडम आंसर्स बट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट। 1 2 3 4। चलिए, एक काम करते हैं, सारे नहीं बचे, जस्ट टेल मी द फर्स्ट बिगेस्ट प्लैनेट। टेल मी द वेरी फर्स्ट द बिगेस्ट प्लैनेट। बच्चे, बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है? नंबर वन बताइए मुझे, बिगेस्ट प्लैनेट। बच्चे, मरकरी कौन बोल रहा है? नहीं 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 बच्चे, बिगेस्ट प्लैनेट आपका जुपिटर है। द बिगेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर। कभी आप देखिएगा, कभी भी देखना एक बार आप अपने उसको प्लैनेट्स को एक बार देखना बच्चे, यू विल अंडरस्टैंड दैट द जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। वेट अ सेकंड, लेट मी शो यू द प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम। बच्चे, ये रहे हमारे सारे के सारे प्लैनेट्स। ओके, नाउ लुक एट हियर। ये रहा हमारा सन। ओके, आफ्टर द सन वी हैव द मरकरी, देन वी हैव वीनस, अर्थ, मार्स। लुक एट हियर बच्चे, जुपिटर और सैटर्न। देखो, एक के पास में रिंग है, रिंग के पास वाला जो है आपका वो सबसे बड़ा प्लैनेट है, दैट इज द जुपिटर। ओके, दिस इज द लार्जेस्ट प्लैनेट बच्चे, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। दिख रहा है आप लोग को? दिस इज द जुपिटर। देन वी हैव योर सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। So the correct answer is Jupiter. Now the second we have, student, that is the smallest planet.
स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है आपका? अब आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे, अब आप अगेन देखो यहाँ पे बच्चे, कौन सा प्लैनेट आपको स्मॉलेस्ट लग रहा है? और अब दिमाग लगाओ अपना, एम वैम जेसन वाला। ओके, नाउ टेल मी द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है आपका? अच्छा, गुमटो सेकंड का आंसर बोला बच्चे, पहले वन का आंसर दो, अब दो सेकंड का आंसर। ओके, चलो अब बताइए मेरे को बच्चे, स्मॉलेस्ट प्लैनेट। वेरी नाइस बच्चे, दैट इज योर मर्करी। द करेक्ट आंसर इज मर्करी। बच्चे नहीं, कोई भी प्लैनेट आपके सन से बड़ा नहीं है टैमी, बट इस तरीके से दिखाया गया है कि आपको समझ में आ जाए वो। ओके, अदरवाइज सन तो बहुत बड़े हैं आपके प्लैनेट से, बहुत ज्यादा बड़े हैं बच्चे। कोई भी प्लैनेट आपके सन के बराबर नहीं है। थर्ड वी हैव, दैट इज योर बच्चे ब्लू प्लैनेट। ओके, थर्ड इज द ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं? विच प्लैनेट इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट? Very impressive बच्चे, दैट इज द अर्थ। अर्थ इज नोन एज अ ब्लू प्लैनेट। वाई स्टूडेंट इज अर्थ इज नोन एज अ ब्लू प्लैनेट? बिकॉज अर्थ पे वाटर ज्यादा है एज कंपेयर टू द लैंड। वाटर इज ऑलमोस्ट 79% एंड द रिमेनिंग 21% इज लैंड, राइट? दैट इज बच्चे 71% वाटर है एंड 29% लैंड है अर्थ पर, राइट? दैट इज द रीजन कि अर्थ को आप ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हो, कि कभी भी आप देखते हो तो आपको क्या ज्यादातर दिखता है अर्थ पे? वाटर ज्यादा दिखता है। लुक एट हियर, अगर हम अर्थ को देखेंगे तो आपको अर्थ फ्रॉम स्पेस, ये देखिए बच्चे क्या ज्यादा दिख रहा है हमें? इट इज अ ब्लू प्लैनेट। लुक एट इट, अब कंप्लीटली पानी पानी दिख रहा है हमें। आप लोग मैम ये तो व्हाइट दिख रहा है बच्चे, तो पानी कैसे कलर का होता है? व्हाइट कलर का ही होता है ना। सो लुक एट हियर, व्हाट वी एक्चुअली गेट, वी गेट द ब्लू कलर। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन प्लैनेट। बच्चे विच प्लैनेट इज नोन एज द ग्रीन प्लैनेट? नाउ आंसर दिस, दिस इज इंटरेस्टिंग। विच प्लैनेट इज नोन एज द ग्रीन प्लैनेट? वेरी नाइस बेटा, दैट इज द यूरेनस। यूरेनस को आपका ग्रीन प्लैनेट कहते हैं, व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर। बच्चे इसके एटमॉस्फेयर में क्या ज्यादा है आपका? मीथेन गैस ज्यादा है। इन इट्स एटमॉस्फेयर इट हैज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ और द प्लेंटी अमाउंट ऑफ मीथेन गैस, जिसकी वजह से जो यूरेनस है बच्चे, वो कौन से कलर का दिखता है आपको? ग्रीन कलर का दिखता है, बिकॉज ऑफ द मीथेन प्रेजेंस। नाउ द नेक्स्ट वी हैव, दैट इज स्टूडेंट्स, विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? रेड प्लैनेट किसे कहते हैं आपका? विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट?
वेरी नाइस बच्चे, मार्च। वेरी नाइस एडम, वेरी नाइस, दैट्स योर मार्क्स, वेरी गुड। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मार्स। बच्चे कौन सा प्लैनेट है हमारा? दैट इज योर मार्स। मार्स इज द ब्लू प्लैनेट। व्हाई? बिकॉज जो इसका सरफेस है, इट इज मेड अप ऑफ योर आयरन ऑक्साइड। किससे बना हुआ है बच्चे? आयरन ऑक्साइड से इसकी सॉइल बनी हुई है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन इट अपीयर्स रेड इन कलर। ओके, ये रेड दिखता है आपका दूर से जब आप देखते हो तो इसको। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं हम? इट इज नोन एज अ रेड प्लैनेट। विच वन? द मार्स इज नोन एज अ रेड प्लैनेट। Okay. Now, the next we have, bache, that is your hottest planet. Which is the hottest planet in this particular solar system, in our solar system? Which planet is the hottest planet? Very nice, students. That is your Venus. That Venus is the hottest planet. At the same point, it is the brightest planet, but it is the brightest planet as well. It is the hottest and the brightest planet. Reason being because of its atmosphere. क्यों बच्चे? बिकॉज ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर। इसका एटमॉस्फेयर कैसा है? बहुत ही ज्यादा थिक है। जब बहुत ज्यादा थिक है बच्चे, तो ये क्या करेगा? बहुत ज्यादा इंसुलेशन को एब्जॉर्ब करेगा। इंसुलेशन को एब्जॉर्ब करेगा, जब एब्जॉर्ब करेगा तो क्या बन जाएगा? ये आपको बहुत ज्यादा गर्म प्लैनेट बन जाएगा। इट विल बिकम अ वेरी हॉट प्लैनेट। ओके, और एट द सेम पॉइंट बच्चे इट इज वेरी क्लोज टू द सन एज वेल। सेकंड नंबर पे आता है आपके ये, राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। नाउ द नेक्स्ट वी हैव, दैट इज योर maximum number of satellite students. Name me the planet which has the maximum number of satellites. कौन सा planet है आपके जिसके पास maximum number of satellites है? Planet having the maximum number of satellites. बच्चे मरकरी सन के सामने है, वो मैं आपकी बात को मान रही हूँ। बट एट द सेम पॉइंट इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि आपका बच्चे बना किससे हुआ है। ओके, सारी चीजें देखी जाती है कि ये आपका प्लैनेट किससे बना हुआ है, उसका जो एटमॉस्फेयर है वो किससे बना हुआ है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे सूरज के सामने आपने दो चीजें रख दी, एक जगह आपने आइस रख दिया, एक जगह आपने वाटर रख दिया। तो जल्दी गर्म कौन होगा आपका? वाटर होगा, आइस नहीं होगा। भले ही आपका आइस थोड़ा पास भी क्यों ना हो, बट पहले कौन होगा आपका बच्चे? वाटर होगा, राइट? द सेम वे इट्स योर वीनस एंड मरकरी। मैं ये नहीं कह रही कि मरकरी एकदम बर्फ का बना हुआ है। नहीं, बट बच्चे दोनों में कॉम्पोजिशन में डिफरेंट है। ओके, देयर इज अ डिफरेंस इन द कॉम्पोजिशन। ओके स्टूडेंट, सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव अ टसल। ओके, इसमें क्या होता है बच्चे? टसल हो जाती है। टसल किसके बीच में हो जाती है आपके? जुपिटर कहता है कि मेरे पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हैं। सैटर्न कहता है नहीं, मेरे पास सबसे ज्यादा चांद है। तो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी हैव द जुपिटर एंड सैटर्न। ओके, दोनों। अब इन दोनों में आपका कॉन्सेप्ट आता है बच्चे परमानेंट मून्स का एंड टेम्पररी मून्स का। पढ़ाया हुआ है मैंने आप लोग को, राइट? नाउ देयर वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द परमानेंट एंड द टेम्पररी मूव्स। तो अगर इन दोनों को काउंट करें तो बच्चे किसके पास ज्यादा है आपके? जुपिटर के पास ज्यादा है। अगर हम परमानेंट और टेम्पररी को काउंट करें, आई थिंक इट हैज ऑलमोस्ट 91 समथिंग। ओके, वेयर एज द सैटर्न हैव ओनली 87। बट स्टूडेंट्स, टेम्पररी तो ऐसे हैं जो आज दिख रहे हैं कल नहीं दिखेंगे। टेम्पररी मून कौन से होते हैं? जो आज दिख रहे हैं और कल नहीं दिखेंगे। तो इनको हम मान नहीं सकते हैं। जबकि बच्चे परमानेंट आपके सैटर्न के पास ज्यादा है। परमानेंट किसके पास ज्यादा है? सैटर्न के पास ज्यादा है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स गोज टू दी सैटर्न। बच्चे किसके पास ज्यादा है आपके? सैटर्न के पास ज्यादा है रेदर देन दी जुपिटर, बिकॉज जुपिटर के पास टेम्पररी ज्यादा है, परमानेंट कम है। ओके, एज कंपेयर टू द सैटर्न। चलिए, नाउ द नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट्स, दैट इज द farthest planet. Name the farthest planet from the sun. Which planet is the farthest planet from the sun? Answer it.
Absolutely, बच्चे, absolutely. That is your none other than Neptune. Okay, none other than Neptune. That Neptune, it is the farthest planet. बच्चे, Pluto is no more a planet now. Kendrick, Pluto is no more a planet. Okay, now the nearest planet to the Earth. Which planet is very close to the Earth, बच्चे? The nearest to the Earth. Which planet is nearest to the Earth? Now we all know that it is your MWEM, right? In this MWEM, बच्चे, Earth आपका ये रहा. अर्थ के पास अब आपके दो प्लैनेट्स हैं, वीनस है और मार्स है. अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा आपका नियरेस्ट है अर्थ के? वीनस एंड मार्स में से. Very impressive. That is the Venus. The correct answer is Venus. Okay. Now the next question, student, that is the Earth's twin. Which planet is known as Earth's twin? कौन से planet को आपका Earth's twin कहते हैं? अर्थ का जुड़वा. Okay. Evan has already answered. बच्चे, Earth's twin, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये तीनों एक ही planet को बोला जाता है. बताइए कौन से planet है आपके? Morning star and evening star also. Okay. Earth's twin, morning star and evening star. Very impressive, बच्चे. That is the correct answer goes to the including the fourth. Okay, ये वाला भी बच्चे पूरा. ये चारों आपके किसको जाते हैं? ये चारों के चारों जाते हैं आपके वीनस को. किसको जाते हैं? वीनस को. Okay, all goes to the वीनस बच्चे. नियरेस्ट प्लैनेट इज वीनस. अर्थ ट्विन बच्चे, अर्थ ट्विन क्यों कहते हैं? बिकॉज आपका जो वीनस है उसका साइज क्या है? मोर और लेस अर्थ के साइज के बराबर है. ये देखिए, ये देखो बच्चे, अगर आप अर्थ और वीनस को देखो, एक बार अर्थ और वीनस को देखो, लगभग लगभग दोनों का साइज कैसा है बच्चे? सेम है, राइट? सो दैट्स व्हाई द Venus is known as the Earth's twin. Second, we have बच्चे that is a morning star and evening star. सुबह होने से पहले और शाम होने के, सुबह होने से पहले और शाम होने के बाद आपको अगर स्काई में बच्चे केवल एक ही प्लैनेट दिखेगा, उसका नाम क्या है आपका? दैट इज वीनस. और इसी वजह से इसे क्या कहते हैं हम? स्टार कहते हैं. बिकॉज सुबह होने से पहले बच्चे, अर्ली मॉर्निंग, और रात होने के बाद आपको केवल आसमान में क्या दिखते हैं? स्टार दिखते हैं. तो इसको बच्चे एक ऑनर दिया गया है स्टार का, वीनस को. ओके. द नेक्स्ट प्लैनेट व्हाट वी हैव, द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव इज द ड्वार्फ प्लैनेट बच्चे. दैट इज द ड्वार्फ प्लैनेट. विच प्लैनेट इज नोन एज अ ड्वार्फ प्लैनेट? बच्चे, ड्वार्फ का मतलब होता है आपका बोना. बोना मीन्स जिस इंसान की एज बढ़ जाती है बट हाइट नहीं बढ़ती है. एक बार मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ, आप समझ जाएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्वार्फ. बच्चे, ये देखिए, ये होते हैं आपके ड्वार्फ पीपल जिनकी एज बढ़ जाती है बट एट द सेम पॉइंट उनकी हाइट नहीं बढ़ती है. ओके. सो द सेम वे वी हैव वन प्लैनेट आल्सो which that planet is known as the dwarf planet. वेरी नाइस बच्चे, वेरी नाइस. दैट्स योर प्लूटो. द प्लूटो इज नोन एज अ ड्वार्फ प्लैनेट. कब बोला गया था बच्चे? 2006 में, जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने आपका प्लूटो को एज अ प्लैनेट जो था वो हटा दिया था. ओके, एज अ प्लैनेट इसको हटा दिया था. दो रीजंस की वजह से, राइट? पढ़ाया हुआ है मैंने बच्चे. एक तो ये अपनी ऑर्बिट में नहीं जाता, दूसरा इसका जो साइज है
वो आपके प्लैनेट्स के साइज के अकॉर्डिंग छोटा है। इन दो रीजन से इसको क्या किया, एज अ प्लैनेट इसको हटा दिया गया, एंड नाउ इट इज इन अ कैटेगरी ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट। और बच्चे ड्वार्फ प्लैनेट किसका पार्ट है? दे आर द पार्ट ऑफ क्यूपर बेल्ट। ओके, दे आर द पार्ट ऑफ क्यूपर बेल्ट। बच्चे नहीं, जो आपका प्लैनेट है बच्चे, उसका साइज नहीं बढ़ता है, पर एक स्टैंडर्ड साइज तो होता है ना, एक स्टैंडर्ड साइज। जैसे बच्चा आपका एक स्टैंडर्ड साइज होता है आर्मी में जाने का, दैट इज आदमियों की हाइट कितनी होनी चाहिए? 5'6" होनी चाहिए, और गर्ल्स की 5'4" होनी चाहिए या 5'2" होनी चाहिए, कुछ ऐसे है। तो बच्चे व्हाट इज दिस? दिस इज अ बेंचमार्क। ये आपका एक बेंचमार्क सेट कर रखा है कि इससे कम जो है वो नहीं लिया जाएगा। द सेम वे बच्चे आपके प्लैनेट्स के साथ में होता है। प्लैनेट्स की जो ग्रोथ है वो बढ़ नहीं रही है, उतने के उतने ही है, बट एक बेंचमार्क सेट किया गया आपका कि इससे कम को नहीं लिया जाएगा। ओके, नाउ बच्चे टेल मी द एस्ट्रॉयड बेल्ट इज लोकेटेड बिटवीन। एस्ट्रॉयड बेल्ट किन दो के बीच में आपकी लोकेटेड है? आंसर मी फास्ट। Very nice students, that is between your Mars and Jupiter. Very good. मास एंड जुपिटर। बच्चा आप इसको एक और चीज लिख सकते हो, दैट इट इज बिटवीन द इनर प्लैनेट एंड द आउटर प्लैनेट। एक और चीज लिख सकते हो आप इनको बच्चे, एक और चीज लिख सकते हो, इट इज बिटवीन द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड द जोवियन प्लैनेट और द गैसियस प्लैनेट। है ना, किसी भी तरीके से लिख सकते हो जैसे आपको लिखना है। लुक एट हियर अगेन। इसमें एस्ट्रॉइड बेल्ट नहीं दे रखा है, एस्ट्रॉइड बेल्ट बिटवीन द प्लैनेट्स। ये देखो बच्चे, ये रहा आपका, ये रहा हमारा सन और ये रहे हमारे प्लैनेट, एंड लुक एट हियर, दिस इज द एस्ट्रॉइड बेल्ट। दिस इज द asteroid belt which is lying between the Mars and the Jupiter, between the inner planet and the outer planet, right? Mars and the Jupiter, inner planet and the outer planet, right? ये देखो बच्चे, ये रही अगेन द एस्ट्रॉइड बेल्ट। लुक एट हियर, द मार्स एंड जुपिटर, इन दोनों के बीच में है आपके एस्ट्रॉइड बेल्ट। चलिए, नाउ द नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट इज अ मेटियोर, मेटेरोइड एंड मेटेरोइड। ये आपको बच्चे तीनों की लोकेशंस बतानी है। क्या बतानी है? लोकेशंस, कि कब कब इसको कहाँ कहाँ पे ये बोला जाता है, किस किस जगह पे इसको इस नाम से बोला जाता है आपका। मेटियोर कहाँ कहते हैं इसे, मेटियोराइट कहाँ कहते हैं, मेटियोरॉइड कहाँ कहते हैं। ओके, ऑल थ्री ऑफ देम।
बच्चे आंसर द क्वेश्चन एंड प्लीज डू लाइक द सेशन. ओके बच्चे, प्लीज डू लाइक द सेशन इफ you actually enjoyed it. Okay, so now let me tell you, बच्चे, please do like the session and let me tell you the answers. नंबर वन बच्चे, मेटियोर, मेटियोराइट एंड मेटियोरॉइड. तो इसमें से आप एक काम कर सकते हैं, पहले आप लगा लो मेटियोराइट. ठीक है बच्चे, मेटियोरॉइड क्या होता है? जब ये आपके स्पेस में होता है. कहाँ पे होता है आपके? जब स्पेस में होता है. मेटियोर मीन्स हमारे कहाँ पे होता है बच्चे? अर्थ के एटमॉस्फेयर में होता है. एटमॉस्फेयर बच्चे कहाँ का? अर्थ का. ओके. थर्ड भी आप बच्चे, मेटियोराइट कहाँ होता है? जब आपके सरफेस पर आ जाता है. किसके? अर्थ के सरफेस पर आ जाता है. ओके, व्हेन इट कम्स इन दी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. सो दैट वी हैव बच्चे मेटियोर, मेटियोराइट एंड मेटियोरॉइड. जब तक आपके स्पेस में है तब तक इसका नाम क्या होता है आपका? मेटियोरॉइड. जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में आ गया बच्चे, क्या नाम बन गया इसका? मेटियोर. और जैसे ही हमारे धरती पर आ गया, इसका नाम क्या बन गया आपका? मेटियोराइट. इट नाउ इट बिकम्स दी मेटियोराइट. ओके, सो दीज आर द थ्री. चलिए, लेट मी ऑल्सो शो यू बच्चे, एक बार आप देख लीजिए. आप लोग देख लोगे तो समझ में आ जाएगा आपको. मेटियोराइट, मेटियोरॉइड एंड मेटियोर. लुक एट, ये बच्चे, ये देखें, ये रहा आपका मेटियोरॉइड. कहाँ पर है आपकी? ये स्पेस में है. ओके. मेटियोर एटमॉस्फेयर में एंड मेटियोराइट आपके सरफेस पर जब आ जाता है. ओके, ऑल थ्री ऑफ देम. चलिए, now the next question is, students, this is the last question for this session, that is the layers of the earth. What are the different layers of the earth? बच्चे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के लिए क्वेश्चन है आपका ये. It is a question related to the interior of the earth. Okay, it is related to the interior of the earth. Layers of the earth. बच्चे, मेजर लेयर्स बतानी है आपको, सारी लेयर्स नहीं बतानी है आपको, मेजर लेयर्स बतानी है. व्हाट आर द मेजर लेयर्स? ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज अ बच्चे, दैट इज दी, इस तरीके से, राइट? याद है? दैट इज अ बच्चे क्रस्ट, मेंटल एंड दी कोर. है ना? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ इंटीरियर. क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ये तीन हमारी लेयर्स हैं. क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. नाउ स्टूडेंट्स, बाय टुमारो आई विल अगेन कंटिन्यू द सेम सेशंस. आगे हम कंटिन्यू करेंगे आपके सेम क्वेश्चंस को. दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. आई होप दैट यू एंजॉयड टुडेज सेशन. विल मीट यू टुमारो अगेन एट द सेम टाइमिंग, ओके, एट 10 a.m. बच्चे. And please do like the session. If you actually like the session, बच्चे, please do like. It will help in the growth of the institution, okay? Please like the session. Thank you so much, students, for taking it. Thank you so much. We'll meet you tomorrow. किसी को कोई डाउट है बच्चे? अब तक जो सवाल पूछे आपसे, कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी आंसर जिसको समझ में ना आया हो बच्चे, जस्ट लेट मी नो. थैंक यू सो मच पिंकी. थैंक यू सो मच बच्चे. थैंक यू सो मच. थैंक यू जोना. थैंक यू बच्चे. ओके, ऑल क्लियर. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द सेशन स्टूडेंट्स. थैंक यू येपोंग. थैंक यू. चलिए, सो विल मीट यू टुमारो अगेन एट द सेम टाइमिंग स्टूडेंट्स. एंड आई एम सो सॉरी फॉर टुडेज सेशन. एक्चुअली इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया बिकॉज सेटअप नहीं हो पा रहा था. अब समझ में आ गया मुझे कैसे सेटअप करना है, तो कल थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. ओके, बाय टुमारो वी विल अर्ली एंड क्विकली स्टार्ट द सेशन. चलिए, थैंक यू सो मच नेट्स. थैंक यू बच्चे. थैंक यू.